آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو السلام علیکم جی کون صاحب؟ حضرت میں رحمت بول رہا ہوں رحمت کہاں سے؟ جی ممبئی بھیونڈی شیواجی نگر۔ اچھا ممبئی بھیونڈی، جی اچھا اچھا حضرت لائن پہ بھیونڈی ہے، بولتا ہے کہ اس سے بات کریں گے ماجلا لائن بولتا ہے یہ کام میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے میں آپ کے سلام کا جواب دے دوں، اور میں ابھی کہیں آیا ہوا تھا۔ اچھا ہاں، بات کیا چل رہی تھی؟ ماجلا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو بولا کہ کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس کو دے دو۔ میں بھی جی لائن تھوڑا پہ سا بات کر لیا تھا، کہیں ہو آپ؟ ہاں کہیں پہ آیا ہوا ہوں۔ تو ابھی بات نہیں ہوگا نا؟ آپ واٹس ایپ کون سے پہ چلاتے ہو؟ واٹس ایپ کون سے پہ چلاتے ہو؟ واٹس ایپ 71 لاسٹ میں 71 ہے۔ اچھا 71 ہے، پتہ نہیں کون سا ہے۔ 8252 وہ 012 بغیر ثبوت کے مانیں گے نہیں نا یہ لوگ؟ نہیں وہ ثبوت تو میں بھی بھیجا ہوں، رشید احمد نے کا دیا انسان کے بارے، تو بولتا ہے کہ میں بات کرا اس میں غلط کیا لکھا ہے، مراد کیا ہے، نہیں یہ بات کرے گا نا۔ جب 5 منٹ بات کر لیجیے، لائن پر ہے اس لیے بولنا، تو پھر بعد میں اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا۔ لائیے چلو۔ ہاں بات کیجیے۔ ہیلو جی جناب، آپ کون؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ بولیں۔ پہچانتے مجھے؟ 2000 اور پتھر والا چولہا۔ ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بھی ڈسکاؤنٹ کرا سکتے تھے، آپ ہی پکڑ یہاں پر ہماری۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ارے بھائی میں نے آپ سے معلوم کیا ہے آپ کون بول رہے ہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں بھی بتاؤں گا، آپ تو بتائیں کم سے کم۔ میں نے بتا دیا بھائی۔ میں نے سنا نہیں، میں باتوں میں لگا ہوا تھا، کوئی بات کر رہا تھا میں۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر سے بتا رہا ہوں، محمد عمر نام ہے میرا۔ محمد عمر، کہاں سے ہیں آپ؟ میں ممبئی سے ہوں، آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں، آپ کیا نام ہے؟ اچھا جناب ممبئی سے ہیں، خاص ممبئی کے ہی رہنے والے ہیں؟ ہاں ممبئی ہی رہنے والے، ہمارے باپ دادا تو یو پی کے تھے لیکن ہم اب ممبئی ہی شفٹ ہیں۔ اچھا میں یو پی رامپور سے ہوں، ہاں اور میں یو پی رامپور سے ہوں، اور میرا نام نور حسن ہے۔ اچھا ہاں چلیے، آپ سے ایک بار میری بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات ہو چکی ہے؟ جی اچھا جی، آپ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس پہ بات کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ آپ کس مسلک سے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت آناپ علماء دیوبند سے تعلق ہے میرا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ بریلوی مسلک کے ہیں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے تو اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، بالکل آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جی بالکل آپ کو دلیل دے سکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیں گے؟ ہاں 9892 ایک منٹ، کیا بولے نمبر؟ واٹس ایپ نمبر 9892 9892 59 59 4345 4345۔ جی اچھا مگر ادھر مجھے دکھا نہیں رہا ہے آپ کا واٹس ایپ۔
آپ مجھے میرے نمبر پہ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو میرے نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 1 منٹ. نہیں، آپ کا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے اور ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو جو نمبر دیا ہے یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اچھا ہاں، آپ دیکھیے. آپ چلیے، مجھے جو ہے آپ کس کتاب کا حوالہ چاہتے ہیں؟ جی کس کتاب کا حوالہ دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہوگا، جس کا بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں یا آپ کے مطلب ریلیشن میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو، تو اس کے اوپر شریعت کا حکم کیا آئے گا؟ کس چیز پر؟ جیسے آپ نے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر آپ بات کریں گے کیا؟ تو میں نے کہا ہاں جی میں بات کروں گا. تو آپ کا کیا اللہ جو نظریہ ہے؟ ہاں، جی جی دیکھو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں ہے، سوال کیا ہے کسی نے کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کیسا ہے، تو جواب دیا ہے ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی جو پاک ذات ہے وہ منزہ ہے اس سے کہ متصف بے صفتیں جھوٹ کیا جائے، کس کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جھوٹ کی نسبت سے تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بول سکتا ہے. جی، تو جو لوگ کہتے ہیں چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، تو ان پر شریعت کا حکم کیا آئے گا؟ وہ مسلمان ہی رہیں گے ایسا عقیدہ رکھ کے یا کافر ہو جائیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، بتائیں. جو اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، نہیں نہیں، میں نے یہ کب کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے یہ کب کہا؟ آپ بات کو بڑھا چڑھا کر کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا بولا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ پر قادر ہے، جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ میں نے یہ معلوم کیا ہے. ایک بات سنیے، آپ کا ہمارے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ آپ کے متعلق میرا کوئی اعتراض کرتا ہے؟ سنو، آپ کے متعلق میرا کوئی نظریہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے. جیسے آپ الزام نہیں لگا، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں. دیکھو غلط مباحث کو غلط مدد مت کریے. انہوں نے آپ کے آپ آ گئے اپنی والی پہ. آپ سنو میری بات کو پہلے تسلی سے سن لو، کیونکہ بعد میں آپ گالی گلوچ بھی کرنے لگتے ہیں، میں جانتا ہوں. تو پہلے ایک چیزیں سن لو، ایک چیزیں اصول لو. آپ کے بندے نے کہا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. 1 منٹ اب یہیں رکیں. ہاں جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ جھوٹ بول سکتا ہے. 1 منٹ خاموش رہیے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی رحمت. جی رحمت. اچھا رحمت بھائی، کیا آپ نے ان سے یہ کہا ہے کہ علماء اہل سنت بریلوی جن کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی عالموں نے یہ کہا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں. پھر کیسے بولا ہے آپ نے؟ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. ہاں یہی بولا. ہاں تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہماری کس کتاب میں ہے کہ جو خدا اچھا ٹھیک ہے. بول سکتا ہے. ہاں ایک منٹ بس بات ہی ختم ہے. نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا میں ایسے تھوڑی بتا دوں گا ایک دم سے. آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ اگر کسی نے ایسا لکھا ہے یا کسی کا ایسا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر شریعت کا حکم کیا آئے گا؟ اس پر جو ہے کفر کا حکم لگے گا یا کوئی اور حکم لگے گا یا وہ ایمان والا ہی رہے گا؟ مجھے بس اتنا بتا دیں. آپ گھبرا رہے ہیں لگتا ہے. جواب دیں نا مجھے. دیکھیے یہ یار ہمیں چلیے کال کاٹ دیجیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. چلیے بھائی جان میں رکھتا ہوں، میں کسی کام میں تھا. ٹھیک ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. بھاگو مت. تو جواب دے دیجیے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے. ایک بندے نے آپ سے امید رکھا ہے کہ آپ نے جو الزام میں کہیں آیا ہوا ہوں، میں نے ان سے ویسے بھی منع کیا تھا. میں نے کہا میں کہیں آیا ہوا. آپ نے مانا بھی ہے کہ ہاں آپ ہم کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ یہ الزام لگاتے ہیں. تو میں اس کو ہم الزام نہیں لگاتے، ہم تو صحیح کہتے ہیں. ہم الزام کہاں لگاتے ہیں؟ آپ کا بندہ دیکھو بھاگ رہا ہے، آپ اس کو تو آپ جواب کب دے رہے ہو؟ دیکھیے بھاگ رہا ہے، دیکھیے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھاگ رہا ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ثابت کرے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے.
मगर ये बेचारा भाग रहा है। आप जो मैंने पूछा उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे हो यार, तो भागू नहीं। आपने पूछा वो छोड़ो, क्या पूछा, आपकी बात ही नहीं है पूछना। आपने एक बात कही है कि उलमाए देवबंद, तो आप मुझे पहले अपना व्हाट्सएप नंबर दें ना, आप मुझे व्हाट्सएप करें। अगर आप मुझे जानते हैं और मेरी मुझसे कभी बात हुई है तो पहले आप मुझे व्हाट्सएप दें, मैं आपसे ही पढ़वाना चाहता हूँ। आप नंबर दो। हाँ लिखिए, नंबर लिखिए आप। 790 हाँ 790 अरे अलग अलग बोलिए। 790 790 790 यार। हाँ 790 हो गया। हाँ अच्छा 6 हाँ 8 790 अरे यार 6 नहीं बोला उससे पहले मैंने। 8 हाँ और 1 हाँ कितना 1 1 जन 1 यार, एक। 8 अरे मेरे सिर पे दर्द करोगे क्या? 688 अरे यार और ना 1 समझ में आ रहा है ना 1 समझ में आ रहा है तुम्हें यार, बताओ कैसे इंसान हो? तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, क्या बोलना चाहते? 790 79068 और उसके बाद 681 क्या आगे बोल रहे हो, समझ में नहीं आता। अरे ऐसा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तुम्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं एम है। क्या होता है? एम क्या होता है? ये 8 तो लिखा हूँ मैं। अरे 8 नहीं है यार, 6-8 के बाद में 6-8 के बाद में 1 है। 1 नहीं जानते हो? 1 1 के बाद 1 हाँ हाँ 40 हाँ 54 40 54 हाँ 54 54 5 54 बस हाँ यानी 5-4 दे दो। 54। हाँ आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दो। अरे मैं एक तो कर लूँ पहले इसको। हाँ तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please. हेलो जी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर दें उस नंबर पे। ये देखो मैंने आपको कुछ भेज दिया है, अब उसको देखो। क्या भेजा है आपने? जो भी भेजा है आप खोल के दे दो ना। अच्छा ठीक। लिख के भेजा हूँ। ओके ओके हाँ जी ठीक है। अब मैं आपको जो है, अब पहले मुझे अब आप ये बता दें कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ऊपर जो भी आप सजा का हुक्म दें, आप इंजाम लगा रहे हैं, फिर उस पर भी बात कर लीजिए। हाँ मेरे ऊपर जो भी सजा का हुक्म दें वो भी कह दें, मुझे बता दें कि ये सजा तुम्हारे लिए है। और सुनो ये दो बात सुन लें, ये देखिए बड़बड़ाहट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पहले मेरी बात सुन लें फिर अपनी बात कह दें। हाँ अगर मैंने गलत बोला हो, झूठ बोला हो तो मेरे लिए सजा मुतय्यन करें आप। और अगर मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला है और वाकई ऐसा ही लिखा है आपकी किताबों में, तो वो मुसलमान है या काफिर है, ये आप मुझे बता दें। सुनो एक होता है कि आपने इल्जाम लगाया और एक होता है कि वो चीज पर क्या हुक्म है क्या नहीं है, तो दोनों चीज अलग अलग है। अभी आपने एक चीज का इल्जाम लगाया है, मैं उससे आपका सबूत मांग रहा हूँ, और जो आपका आदमी लेके आया है वो इसी बिना पे लेके आया है। इससे बात कर लेते हैं, फिर हुक्म पे दूसरे पीरियड में बात कर लेते हैं। जब ये बात खत्म हो जाएगी तो तुरंत उस पर ही बात कर। मुझे मालूम है मेरे देखो यार
ये गलत बात है। तुम नहीं, बात नहीं, कर रहे हो भाई। हम थोड़ी भाग रहे हैं, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो ताकि ऑडियो लोग सुने नहीं, लंबी हो जाए, फालतू में लंबी हो जाए ऑडियो, लोगों का टाइम बर्बाद हो। आप जो मुद्दे लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए वक्त की बढ़ोतरी आप कर रहे हो। आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ। आपने कहा कि मेरा नाम ऐड करो, नंबर ऐड करो, मैंने वो भी कर लिया, सब कर लिया, फिर आप क्यों भाग रहे भाई? इसका मतलब आपको मालूम है मेरा व्हाट्सएप खोल के ही आपको याद आ गया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अभी तक दुनियाई देवंदियत में किसी देवंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जाना है। वो देखो मोह रतन बड़ी बड़ी पेट में तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हकीकत में नहीं, कोई बात नहीं। वो फिरौन हामान की जुबान इस्तेमाल मत करो, बड़ी बड़ी डेंगे मत मारो। बात ये हमसे तो मुझे ये तो इतना कहने में तुम एक मिनट, अल्लाह के बंदे हो ना तुम, एक मिनट, अल्लाह के बंदे हो ना, अल्लाह के दिफा में एक मिनट, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिफा में सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदा होने की दलील पेश क्यों नहीं कर रहे हो कि जो अल्लाह को झूठा कहे या ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, जो अल्लाह पर इल्जाम लगाए वो काफिर है। बोलते क्यों नहीं हो काफिर है? बोल तो काफिर है। वो मुझे मालूम है तो वो टोपी लेके भाग जाएगा अभी अपने। अरे यार फिर वही बात बोल दो ना कि काफिर है, अल्लाह को झूठ, अल्लाह की तरफ इस तरह की निस्बत करने वाला काफिर है, बोल दो ना भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे नहीं हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे नहीं हो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे नहीं हो तो फिर चलो ठीक है। अल्लाह झूठ बोल नहीं तो ये सीधा तो हम मानते नहीं कि नहीं कि ये सीधा है किसी का कि अल्लाह झूठ बोलते नहीं, तो उस आदमी पर हुक्म क्या लगेगा मुझे आप ये बता दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सुन एक बात बताओ। देखिए भाई यार, अरे आपको अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करता है, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करते हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह तुम्हारा, एक मिनट, अल्लाह तुम्हारा मेरा रब है, तो जो हमारे रब के लिए ऐसी बात कहे तो फिर उसके कहने में झिझक क्यों रहे हो यार? इतनी शर्मनाक बात है। देख रहे हैं जनाब, ये झिझक क्यों रहे हैं? झिझक क्यों रहे हो? एक मिनट झिझक क्यों रहे हो कहते हुए? चलो मैं बता देता हूँ, आप अल्लाह के बंदे हो कि नहीं हो? एक मिनट, अरे सुनो ना, मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम कसम खाओ उसके बाद तुम बीच में फोन काट के नहीं भागोगे जब तक ये पूरी बात ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। तुम्हारा मतलब मैं फोन काट के चला जाऊँ? कह रहे हो क्यों? यानी तुम्हारा मतलब कि मैं फोन काट के चला जाऊँ? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार। भाई मैं फोन नहीं काटूंगा, अधूरी बात से नहीं, मैं फोन काटता तो अभी काट देता, क्योंकि अभी बात कोई क्लियर हुई नहीं है। जब क्लियर से पहले नहीं काट रहा हूँ तो मैं उस वक्त क्यों काटूंगा? देखो रहमत देखो भाग रहा है, मैं तो राजी हूँ, हुक्म लगा दूंगा, लेकिन हाँ बिल्कुल हुक्म लगाएं आप। हाँ तुम कसम खाओ, सबूत पेश करूंगा, हुक्म लगाते ही सबूत पेश करूंगा। अरे सुन ना, देख ले, देखो भाई ये अपने, देखो यार ये बदतमीजी कर रहे हैं रहमत साहब। हाँ तो तुम रहमत भाई ये बदतमीजी शुरू कर रहे हैं, मैं उस तरह की बात नहीं करूंगा। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? तो बताइए ना, आप अल्लाह के बंदे हो के नहीं? अरे लेकिन वो कसम खाए रहमत भाई, तुम बोलते हो ना ये भाग जाएगा। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बताइए बताइए। भाग जाएगा नहीं भागेगा भाई, मैं हूँ ना। तो वही वो बंदा कह लेना कसम खा के कि नहीं भागेगा, आप कह रहे हो। मैं अल्लाह पाक की सच्ची कसम खा रहा हूँ तुम्हारे कहने पर, अल्लाह की कसम, मैं फोन काट कर नहीं भागूंगा। अब तुम ये कह दो कि खुदा पर इस तरह की निस्बत करने वाला खुदा की जात के लिए कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, खुदा झूठ पर कादिर है, इस तरह का अकीदा रखने वाला काफिर है। बोलो। देखो एक बात की बात बोलो ना, बोलो, खुदा की तरफ ऐसी निस्बत करने वाला काफिर है। हाँ, खुदा झूठ बोल सकता है, ये अकीदा रखने वाला मुसलमान नहीं है। एक है इम्कानी चीज, ठीक है, और एक है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो जो कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है इस अंदाज में, ठीक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो सुनो और सुनो, झूठ बोल सकता। और तुम ये बताओ कि जो इल्जाम लगाए कि फला आदमी ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है और उसको साबित न करे तो उस पर क्या हुक्म है बताओ। व्हाट्सएप में आ जाओ जल्दी से और अब पढ़ के बताओ मुझे जरा। मैंने भेज दिया आपको। अपना तो आप क्या हुआ? बिल्कुल मेरे ऊपर भी सजा। पहले व्हाट्सएप में आ जाओ। नहीं, जिसने लगाया है झूठा इल्जाम उसका क्या हुक्म है? काफिर है? जो तुम कहो हुक्म लगा दो। नहीं तुम बताओ ना, काफिर है? जो हुक्म लगाए, जो किसी पर इल्जाम लगाए, एक मिनट, जो किसी पर इल्जाम लगाए उसकी सजा शरीयत में मालूम करके मुझे बता दो।
और वो मेरे ऊपर जो है आप लगा दो। झूठा इल्जाम लगाया वो अच्छा, मैंने हवाला भेज दिया है, आप पढ़िए। तज़किरतुल खलील का हवाला भेज दिया है मैंने, कुरान पाक की आयत भी भेज दी है। अच्छा, तो मुझे सजा बता दो ना। मैंने तो तुमसे कहा था कि कहो। ये गलत बात है। अरे भाई, जो किसी पर इल्जाम लगाए उस पर क्या हुक्म लगता है, वो हुक्म मुझ पे लगा दो। और मैंने हवाला भेज दिया, कुरान का हवाला भेजा है, किताबों का हवाला भेजा है, आगे पढ़ो। अच्छा, तुमने पढ़ लिया, माशाल्लाह, तुमने पढ़ लिया। मैं स्क्रीन शॉट खींच दिया मैंने, तुमने देख लिया, और आके इसको पढ़ लियो। अभी मालूम है। माशाल्लाह, तुमने देख लिया, नीला हो गया मेरे तरफ नीला हो गया नीला, व्हाइट था। अब देखो, ये पढ़ के बताओ जरा मुझे। कुरान पाक की आयत भेजी मैंने, और ये बहुत सारी किताबों के हवाले दिए हैं, पढ़िए जनाब। अब भागेगा ये इल्जाम साबित। अच्छा, एक मिनट है हमारे किस अकाबिर ने कहा? तो पढ़ो ना, देखो क्या नाम लिखा है इसका, आशिक इलाही मेरी थी। और जो झूठ बोला है, इल्जाम लगाया है वो। अच्छा, मैंने आपको हवाले भेजे या नहीं भेजे, इतना और बता दो। इसका मतलब डर रहा है कि झूठा इल्जाम है। इसका मतलब तुम्हारे भाईजान, मैंने हवाले भेज दिए और स्क्रीन शॉट भी भेज दिया है मैंने। ऑडियो में मैं लगा दूंगा, ठीक है? देखो ऑडियो में मैं लगा दूंगा, और उमर इसका नाम भी आ रहा है, ठीक है? ये बेचारा भाग रहा है। नहीं, रतन था, आपकी किताब है, आपकी किताब है तज़किरतुल खलील, ठीक है? तुम्हारा आपकी किताब है तज़किरतुल खलील, ठीक है? और लिखने वाले हैं मोहम्मद याह्या साहब, ठीक है? हजरत मौलाना मोहम्मद याह्या, ठीक है? कांदेलवी हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ, तुम हुक्म क्यों नहीं लगा रहे हैं? तुम हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? जो कहीं ये भाई, मैंने तो कह दिया, जो किसी पर इल्जाम लगाने वाले पर हुक्म लगता हो वो लगा दो, मुझे बता दो, मैं वो हुक्म लगा देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको हवाला भेजा कि नहीं भेजा, साबित किया कि नहीं किया? तहमत लगाने वाले पर क्या सजा है? देखिए मुसलमानों, मैंने स्क्रीन शॉट खींच लिया है, ये आपने देख लिया होगा। इनको मैंने दिखा दिया है, इन्होंने अपने व्हाट्सएप में आकर उसको देखा, चेक किया। अच्छा, इतना और बता दें मुझे आप कि मैंने ये आपको हवाले भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, कुरान पाक का हवाला दिया है, किताबों का हवाला दिया है। अरे देखो, ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। सुनिए, चलिए सुनिए। तज़किरतुल खलील किताब का नाम है, ठीक है? हाँ। और ये जो इसके जो तुम्हारे अकाबिर हैं, ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद याह्या साहब, कांदेलवी हैं। और एक और हैं जो इसके मौलिफ हैं, जो इसके लिखने वाले हैं, लिखते हैं बंदा हकीर फकीर तालिब फ्यूज मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही, ठीक है? कौन है ये? अरे भारत आशिक। अच्छा, नहीं भाई, मैं किताब का नाम नहीं बताता, लिखने वाले का नाम नहीं बताता, तो तुम कहते कि यार बताया ही नहीं, नाम ही नहीं बताया, तो पूरी सनद बताना चाहिए। अब देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ जी, अब मैं पढ़ के बताता हूँ। ये कहते हैं कि कुदरत से जायद होना और खुदा के मिकदार, ठीक है, मिकदारात का बंदा के मिकदारात से जायद होना जरूरी नहीं। हालांकि ये कुल्लिया, एक मिनट, ये कुल्लिया, अरे सुन लो यार, देखो जनाब, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो ये जो है ना बीच में गड़गड़ाहट और यानी माहौल बिगाड़ने की ये फुल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? माहौल बिगाड़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं। कुल्लिया मसला अहले कलाम, मुसल्लमा अहले कलाम है, जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह है। अगर इसका इनकार करते हो तो खुद अहले सुन्नत से खारिज हो। इन्होंने खुद ही इकरार कर लिया, ठीक है? कह रहे हैं कि जो इस बात का इनकार करे वो अहले सुन्नत से क्या है, खारिज है, माज़अल्लाह। यानी खुदा की कुदरत को घटाना। कह रहे हैं जो मक़दूरुल्लाह है वो सुनिए, जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह। अरे यार, ये सुनिए, ये कौन सा तरीका बात करने का, मुझे ये बताया जाए रहमत भाई, कौन सा तरीका? मैं कुछ पढ़ के बता रहा हूँ और ये बीच में बोल रहे हैं ताकि किसी को कुछ समझ में ही ना आए। अच्छा चलो 2 मिनट तुम बोलो, किसी को कुछ समझ में ही ना आए। ये बीच में बोले चले जा रहे हैं कि ताकि किसी को कुछ समझ नहीं आए। इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि जो कुछ बंदे कर सकते हैं वो सब कुछ खुदा भी कर सकता है।
جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یعنی جو کچھ بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کا کسی کو یقین نہ ہو یا کوئی اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ خود بتا رہے ہیں۔ تو بتائیے ذرا، اب مجھے آپ خود پڑھ کے بتائیے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، یا جو میں نے پڑھا ہے وہ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں اب۔ اور آپ نے حکم لگا ہی دیا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، اور آپ کی ایک کتاب اور پیش کروں گا، ایک منٹ آپ کی ایک کتاب اور پیش کروں گا۔ ارے یار خاموش کرو، مجھے تو بولنے دو۔ ٹھیک ہے، بولیے بولیے، یہ مجھے پڑھ کے بتائیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تذکرۃ الخلیل نامی کتاب بھیجی ہے، صفحہ 135 پر۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ غلام دستگیر کے نزدیک خدا کی قدرت کا بندہ کی قدرت سے زائد ہوتا ہے، اور خدا کے مقدورات کا بندہ کے مقدورات سے زائد ہوتا ہے۔ یہ عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ رہا تھا بیچارہ، ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ کلیہ مسلمان ہے اہل کلام سے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدورات، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ہماری کتاب میں ہے، اور اس نے اقرار کیا ہے کہ جو الزام لگائے اور ثابت نہ کر پائے تو شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ بندہ ابھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا، اس میں کوئی ایک بھی الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ ارے بھاگنا مت، کال کاٹ کے مجھے کہہ رہے تھے نا کہ بھاگنا مت، مگر آپ مت بھاگنا، ابھی میں آپ سے ہی کچھ پوچھتا ہوں۔ وہ ابھی آگے خود پتہ چل جائے گا، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ہماری کتاب میں۔ ایک منٹ وہ بھی سب ایک طرف سے سب پیش کروں گا، مگر مجھے یہ بتائیے، مجھے معلوم ہے تم مجھے بولنے نہیں دو گے۔ یہ جو اس میں لکھا ہے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ خدا بھی کر سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بتائیے آپ، بتائیے کیا جو کام بندے کرتے ہیں وہ خدا کرے گا؟ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ یہ مان لیے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ہمارے نہیں وہ بھی پیش کروں گا۔ ارے یار جناب، وہ سب پیش کروں گا، انشاءاللہ سب پیش کروں گا۔ بولنے دے بھائی، دیکھیے آپ نے مان لیا ہے کہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور دنیا دیوبندیت میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، انشاءاللہ یہ میں کھلے عام بول رہا ہوں۔ میں کوئی سچا ہے ہی نہیں، پہلی بات ہے، جو سچائی سے بات کر تو مجھے یہ بتائیے، کیا جو کام بندے کرتے ہیں وہ سب خدا کرتا ہے؟ جواب دیجئے، یا کر سکتا ہے؟ بولیے۔ ابھی آپ بس اسی پر اتفاق کر لی، بس اتنا ہی جواب دے دیجئے، ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہی جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے، کیا یہ تمہارے نزدیک صحیح ہے؟ اچھا نہیں، جواب دیں، کیا یہ تمہارے نزدیک صحیح ہے؟ آپ کے نزدیک غلط ہے؟ جواب دیں۔ نزدیک غلط ہے؟ میں وہ کام گنواؤں گا کہ جو بندے کرتے ہیں مگر خدا نہیں کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ گنوا مت، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ پہ دیکھیے بھائی، ادھر ادھر مت بھاگو، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جو آپ کے عالموں نے لکھا ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، تو یہ آپ کے نزدیک کیا ہے یہ بتائیے آپ۔ نہیں، اس میں فتویٰ تو لگا دو، یہ کیا ہے؟ پھر وہی بات، یا عقائد کیا ہے یہ بتا دو نا، پھر میں سمجھا میں ہاں بالکل انشاءاللہ بتاؤ ہمارے علماء نے جو بھی لکھا ہے بالکل۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کہ جو ہاں، جو یہ عقیدہ رکھے جو کام بندے کر، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یا اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ، پہلے اس کا مطلب مجھے بتائیں ذرا، سمجھائیں۔ میں یہ چیز پوچھا ہوں، دیکھیے مسلمانوں، میں نے یہ ثابت کرا ہے ان کی کتابوں سے، اور بھی حوالے میں پیش کر رہا ہوں، میں اور بھی حوالے میں ان کو دے دوں تاکہ ان کی ہمت نہ ہو۔ دیکھو بھائی، ایک اور کتاب میں ان کے گھر سے بھیج رہا ہوں، جو انسان انوار آفتاب صداقت، ٹھیک ہے، یہ بھی ان دیوبندیوں کی کتاب ہے، اور دیکھیے اس میں لکھا ہے اور وعدہ وعید کے خلاف کرتا، سنیے خاموش رہی، دیکھیے یہ بول رہے ہیں، میں وہ بھی ثابت کروں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جھوٹ کہاں لکھا ہے۔ رحمت بھائی آپ، یہ میری ذمہ داری رہے گی نا کہ کہاں لکھا ہے، میں ہی بتاؤں گا نا، یہ میری ذمہ داری رہے گی۔ تم نے یہ کہا کہ کہاں لکھا ہے تو میں سب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک منٹ،
लीला बहाने से मुसलमानों, दुनियाए देवंदियत में किसी देवंती औरत ने कोई ऐसा बच्चा जना ही नहीं है जो इस गुनहगार से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे, और इन्होंने काफिर करार दे दिया है। इन्होंने ऐसा अकीदा रखने वाले को काफिर करार दे दिया। हालांकि मैं बात करने के मूड में नहीं था, मगर इन्होंने बार बार कहा कि भागो मत भागो मत। तो मैं एक ऐसी जगह बात कर रहा हूँ जहाँ बात करने का मुझे बेहतर नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। कसम तोड़ के भाग रहा है, अल्लाह की कसम तोड़ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, लड़ाई की जगह पे आ गए हो। मैं लड़ाई झगड़ा और बरबर दोनों तरफ से ये पसंद नहीं करता। मगरात से बात करना है नूर आजम भाई आपको। आपके आलिमों ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए तहते कुदरते बारी ताला, तहते कुदरते बारी ताला, तहते कुदरते बारी ताला। हाँ, किस्ब के ताल्लुक से, यानी झूठ के ताल्लुक से। किस्बे बारी ताला तहते कुदरत है। क्या है? किस्बे बारी ताला तहते कुदरत है, यानी खुदा की कुदरत में है। एक मिनट, ये क्या है? किस्बे क्या है? किस्बे समझ, किस्ब है क्या? ये पहले मुझे ये बताया जाए। किस्ब सुनो ना यार, सुनो। हाँ। एक है इम्कान किस्ब, अच्छा ठीक है वो बताऊं। तो इम्कान किस्ब से ये मुराद है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो मुसलमान है, जो नेक काम किए हैं, जो ईमान वाले हैं, उनको जन्नत में दाखिल करेगा, ठीक है। और जो काफिर हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, काफिर जो है उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। लेकिन अल्लाह ताला इस पर भी कुदरत रखता है कि काफिरों को जन्नत दे दे, हम ईमान वालों को जहन्नम दे दे। ये तो फिर कुरान ही झूठा हो गया माज़अल्लाह। तुमने तो फिर कुरान में ही को झूठा साबित कर दिया माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा के वादा वईद में कोई वादा खिलाफी नहीं। कुरान पाक की आयत भी भेजी है मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, कुरान पाक की आयत भी भेजी है मैंने। तुमने तो कुरान ही पर झूठ बांध दिया। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची? तो जब अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है कि मैं बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दूंगा, मगर 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं है, वो कौन कौन से हैं? तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा नहीं, मुझे बताइए कि वो 2 गुनाह कौन से हैं जिनको अल्लाह नहीं बख्शेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, ये अल्लाह ताला का वादा है। एक मिनट, ये अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनहगारों को बख्शेगा, हम जैसे गुनहगारों को बख्शेगा, ठीक है। मगर 2 गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह नहीं बख्शेगा, वो आप बताएं कौन से हैं। मैं क्या कह रहा हूँ तुम? नहीं, पहले मुझे यही बता दें। नहीं, आप मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शेगा ना? वो गुनहगारों की बात नहीं हो रही है। अरे बताइए ना कि 2 गुनाह ऐसे कौन से हैं जिनको अल्लाह नहीं बख्शेगा, बताइए। देखो मुसलमानों, ये यहाँ भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि दुनियाए देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा जना ही नहीं है जो गुनहगार के किए हुए सवाल का जवाब दे दे। वो 2 गुनाह वो हैं जो, एक मिनट, ये वो 2 गुनाह हैं बड़े बड़े जिनको काफिर और मुशरिक कहा जाता है। मुसलमानों, जिनको काफिर और मुशरिक क्या कहा जाता है? एक शिर्क, एक कुफ्र। ये 2 गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शेगा। और ये अभी देवंदी साहब कह रहे थे कि अल्लाह ताला चाहे तो काफिर को बख्श दे, तो फिर तो माज़अल्लाह कुरान ही के ऊपर तहमत लगा दी इन्होंने। अब तो तुमने कुरान ही के ऊपर तहमत लगा दी। कुरान पढ़ते क्यों हो? शर्म नहीं आती? बेशरम हो? शर्म नहीं आती तुम्हें कुरान पढ़ते हुए? शर्म नहीं आती तुम्हें कुरान पढ़ते हुए? हुक्म नहीं लगाएगा ऐसा कोई। देखिए जनाब रहमत साहब, इन्होंने अभी कहा था कि अल्लाह चाहे तो काफिरों को माफ फरमा देगा। बताइए, तो जब खुदा ने खुद कहा कि मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श दूंगा मगर काफिर और मुशरिक को नहीं बख्शूंगा। एक मिनट, आपका ये अकीदा है कि नहीं कि अल्लाह ताला काफिर और मुशरिक को नहीं बख्शेगा? कुरान में है। क्या चीज़ मैं बताऊं साहब? एक मिनट, तुम्हारा क्या है क्या नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मुसलमानों, ये फैसला देखिए, इन्होंने अभी कहा कि अल्लाह चाहे तो काफिरों को बख्श देगा,
मगर खुदा क्या कहता है, खुदा का क्या फरमान है कुरान में, जगह जगह ऐलान है, जगह जगह काफिर और मुशरिकीन के लिए ऐलान है कि सख्त आजाब है उनके लिए, दर्दनाक आजाब है उनके लिए। समझे? मैंने क्या कहा, ये जनाब कह रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो काफिरों को भी बख्श देगा। बताइए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये खुद उनमें से हैं तो ये सोच रहे हैं कि हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या जहन लगाया है, कोई बोले तो क्या है, ऐसा कोई बोले क्या हुक्म, क्या जहन लगाया है। हुक्म यानी तुम्हारे नजदीक इसका कोई हुक्म नहीं है। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि वो जो 2 गुनाह हैं बड़े बड़े जिनको अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शेगा, वो क्या क्या हैं, बस इतना बताएं आप मुझे। अरे यार वार कुछ नहीं भाई, अरे यार वार कुछ नहीं। मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ बात करना मुनासिब नहीं था और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वजह से, ये खुद जवाब मेरी वजह से और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि मैं बात करूँ, देखो मगर तुमने मुझे कहा था कि कसम खाओ। अब मैं उस कसम की वजह से फोन भी नहीं काट सकता। सुन, अगर ऐसा किसी का अकीदा है कि अगर अल्लाह चाहे तो काफिरों को जन्नत दे दे और मुसलमानों को जहन्नम में दाखिल कर दे, तो ये उसकी कुदरत है कि नहीं है, कुदरत से बाहर है कि कुदरत के अंदर है? माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब खुदा ने खुद कहा है कि जन्नत जो है वो मोमिनों के लिए है, ईमान वालों के लिए, और जहन्नम काफिर मुशरिक के लिए है, तो फिर ऐसा सोचेंगे क्यों? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो खुद बददीन है, बदमज़हब है, काफिर है, मुर्तद है। अगर ऐसा कोई सोचता है, हाँ भाई हजरत अगर कोई ये सोचे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और काफिरों को जो है जन्नत में डालेगा, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान रहेगा या काफिर रहेगा, आप बताएं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को इसने मरतद करार दिया। अब्दुल कादिर, मैं यहाँ एक मौलाना साहब से पूछ रहा हूँ जो कि यहीं के रहने वाले हैं, तुम्हारे अकीदे की यही धज्जियां उड़वाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने ऐसा लिखा है। लाइए, अच्छा लाइए वो किताब मुझे भेजिए, किस जगह लिखा है, सबूत पेश करें। अभी क्या अभी पेश करें, आपने दावा किया है, दलील पेश करें। सुनाता हूँ, चलिए भेजें। अभी भी पढ़ता हूँ। हाँ भेजें उसका। हाँ ठीक है। उसका सियाको सबाक क्या है, लाओ मुझे दिखाओ, भेजो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जल्दी भेजो, हवाला भेजो, दलील पेश करो। अरे बिल्कुल, दलील पेश करो, क्या है? तूने एक बड़े बुजुर्ग, दलील पेश करो, क्या है? दलील पेश करो, बकवास नहीं, दलील पेश करो। काफिर बना सियाको सबाक देखना होगा उसका। दलील पेश करो, पूरा साफ लिखा है, देखो। हाँ दलील पेश करो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। ये आपके बरेलवी आलिम का तर्जुमा भी है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा, अत्ताअतु अमलुल जन्नती वल मासियतु अमलुन नारी व बाद जालिकल अमरु इलैहि इंशाअल्लाह असाबा वाहिदन मिन्ना बिगैरि अमलिन औ आकबा वाहिदन मिन्ना बिगैरि अमलिन वजालिका इलैहि फआलु लिमा युरीद ला यसअलु अम्मा यफअलु व हुम यसअलून लौ अदखला वाहिदन मिनल अंबिया'i व सालिहीन अन्नारा काना आदिलन वकान जालिकल हुज्जतुल बालिगतु यजिबु अलैना अन नक़ूल सदकल अमरु वला नक़ूल लिमा व कैफ हाजा यजूजु अन लौ कान अन अदल हक़। इसका तर्जुमा ये है कि जन्नत ताअत का अमल है और गुनाह दोजख का अमल है। उसके बाद इख्तियार अल्लाह ताला को है, अगर वो चाहे हम में से किसी को बगैर अमल के सवाब अता फरमा दे, हम में से किसी को जिसे चाहे बगैर अमल। यहाँ काफिर का लफ्ज दिखाइए मुझे, काफिर और मुशरिक की बात चल रही है, झूठे कितने हो। देखिए चोर की चोरी पकड़ी गई, यहाँ बेअमल की बात नहीं हो रही है, यहाँ अमल और बेअमल नहीं, यहाँ ईमान और कुफ्र की बात हो रही है। यहाँ तुमने कहा कि बेईमान यानी काफिर और मुशरिक, यहाँ कुफ्र और शिर्क की दलील है, वो पेश कीजिए। यहाँ झूठ बोलने में माहिर हो एक नंबर के। पढ़ने के बाद बोल देखो, तो आगे लिख रहे हैं मखलूक से बात खुश होगी, और अगर अंबिया कराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है और उसकी हुज्जत बालिगा हो गई। हम पर तो यही वाजिब है कि हम कहें मामला सच्चा, और हाँ मामला सच्चा है और हम क्यों वतरा करें, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कहाँ लिखा है जरा वो, एक मिनट, वो लफ्ज यहाँ कहाँ है जरा, एक मिनट, यहाँ वो लफ्ज कहाँ है, एक मिनट, यहाँ वो लफ्ज कहाँ है कि अंबिया को जो है जहन्नम में डालेगा? अंबिया जन्नती हैं, ये लफ्ज नहीं है। अंबिया इकराम के जिस्मों को जमीन नहीं खा सकती, तो जहन्नम की बात कर रहा है। और उनके तरफ कोई किताब मंसूब करोगे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। चल दलील पेश कर। नारा
देखो यहाँ है लफ्ज दिखा, कहाँ है वो, कहाँ है? दोजख में दाखिल कर दे कभी वो आदिल है। अरे अल्लाह ताला को बारे में फरमा रहा है। अच्छा जो नबी है वो जन्नती है कि जहन्नमी है? चल बता। ये कि नबी जो है वो जन्नती है कि जहन्नमी है तेरे नजदीक? अरे यार ये है मैं है कहाँ कर रहा हूँ यार, ये कौन सी बात हो गई? रहमत साहब ये है कौन सी? अच्छा रहमत साहब आप तो देवंगी और वहाबियों को काफिर मानते हैं ना? एक मिनट रहमत साहब से पूछना चाहूंगा। रहमत साहब चुप रहमत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मुझे दिखलाना यहाँ कौन सा लफ्ज है कि अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया को जहन्नम में डालेगा, यहाँ कौन सा लफ्ज है? चल लफ्ज पेश कर। अरे लफ्ज पेश कर, वो मुझे दिखा किधर लिखा है। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ कहाँ लिखा है कि अंबिया को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा? किधर? मुझे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, किधर लिखा है जरा दिखाइए, कहाँ लिखा है? नहीं पढ़ो नहीं, मुझे ये बताओ कि यहाँ लिखा है इसमें है। अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यहाँ मैं पूरा ये देख रहा हूँ, इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आया। कभी वो आदिल है करेगा नहीं। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। दाखिल करने की कुदरत में तो तुम यही तो कहते हो कि खुदा झूठ बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं, तुम ही तो शैतान हो। और जो ऐसा सीधा रखे हैं वो काफिर और मुर्तद। तुम ही तो वो शैतान हो। अरे फरीद बुक दीपू किसकी है? वहाबियों की? वहाबी देवबंदियों की ये है क्या? अपने आला हजरत के बारे ये फरीद बुक दीपू ये किसकी प्रेस है ये बताओ पहले। अपने आला हजरत की भी वहाबी देवबंदी इतने बड़े मक्कार हैं कि कोई भी बात किसी के ऊपर भी लपेट देते हैं। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमानों देखिए इसने झूठ बोला, और झूठ ये बोला कि हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि नबियों को अल्लाह ताला अगर जहन्नम में डाले तो वो हक है। तो मुझे यहाँ ये दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ है और ये किसकी किताब है। अच्छा ये किसकी किताब? एक मिनट, ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? इसका मुसन्निफ कौन है इस किताब का? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ लिखा है? हाँ ये उन्हीं की किताब है। इसको फिर से तरतीब किसने दिया है? अरे इसको तरतीब किसने दिया है? और ये जो प्रेस है ये वहाबियों देवबंदियों की प्रेस है या किसी बरेलवी की प्रेस है ये बताओ। और इसकी तकदीम की है अब्दुल हकीम शर्फ कादरी जो ये फरीद बुक दीपू जो है वहाबियों देवबंदियों की प्रेस है। मशहूर आलिम है, वहाबियों देवबंदियों की प्रेस है ये फरीद बुक दीपू। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा तो तुम ये कहकर रहोगे कि खुदा झूठ बोल सकता है, यही कहोगे तुम? तेरे हलाजत की इबारत पढ़ने से पहले खामोश है। माज़ल्लाह। देखिए मुसलमानों काफी टाइम हो गया है और इसने झूठ बांधा और 42 मिनट हो चुके हैं, समझे? ने यही कहा है। ला सबूत पेश कर, वो भी सबूत पेश कर, वो भी सबूत पेश कर, वो भी पेश कर, वो भी पेश कर। झूठा इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा मुसलमानों कि उन्होंने ऐसा बोला। बहरहाल ये चल सबूत पेश करके उसमें अंबिया का नाम किधर है? इसमें अंबिया का नाम दिखा, मुझे नहीं दिख रहा है। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसने अंबिया पर झूठ बोल दिया, गौसे आज़म पर झूठ बोल दिया, किस पर झूठ बोलेगा? वो भी हवाला पेश कर भाई। देखो यार ये तो लड़ाई हो रही है और इस तरह की लड़ाई करना मुझे पसंद नहीं आता। चमड़े का जूता चाहिए तेरे को, बस चमड़े का जूता तेरे को चाहिए, तब औकात ठिकाने में आएगी तेरी। एक साहब मेरे पास में बैठे हुए हैं तो कह रहे हैं इस देवबंदर को चमड़े का जूता चाहिए, तब इसकी औकात समझ में आएगी इसको। वो सुन के तंग आ गए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बताइए मैंने ये कहा है क्या इस तरह का है? बताइए। ये वो शैतान है जो खुदा के लिए कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है और वो सब काम कर सकता है जो बंदे कर सकते हैं। बंदे शादी करते हैं कि नहीं करते बताइए मुसलमानों? बंदों की शादी होती है, बंदों के बच्चे होते हैं, वो भी किसी का बच्चा है। तो बताइए जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह भी है, तो इसके मतलब तो बहुत सारा कुछ हो गया।
खामोश अभी तेरे ये लड़ाई झगड़े वाली बात खत्म नहीं होगी और कभी खत्म नहीं होगी मुसलमानों। अब मैं फोन कट कर रहा हूँ। जिस बात का मुझे सबूत देना था, इसने कहा था कि सबूत बगैर दिए भागना मत, मैंने सबूत दिया और ये वो सबूत नहीं दे रहा है। इसने कहा कि गौस आजम ने कहा कि अल्लाह ताला नबियों को माज़अल्लाह जहन्नम में डालेगा। तो ये कहाँ लिखा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा भाई। इस पे पढ़िए जरा, कहीं लिखा है क्या अंबिया को जो है माज़अल्लाह खुदा, जरा पढ़ के बताइए इसमें कौन सी जगह ऐसा लिखा है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को जो है जहन्नम में डालेगा? बताओ मुझे पढ़ के। स्क्रीन के साथ जाएगी, सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है? कहाँ लफ्ज़ है यहाँ अंबिया का, बताइए पूरे में। यहाँ पढ़वा रहा हूँ मैं, जो यहाँ लोग खड़े हुए ना उनको बता रहा हूँ कि यहाँ कहाँ है अंबिया का लफ्ज़। बताइए 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 ना, बताइए अगर कहीं हो तो बताइए कि यहाँ अंबिया का लफ्ज़ कहाँ पे है। इबारत में पढ़ रहा हूँ अंबिया, अरे मैं इनको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ और भी पढ़े लिखे लोग हैं, तू ही थोड़ी है जाहिल की औलाद। अरे यार वही इबारत मैं पढ़ रहा हूँ, क्या झूठ? अरे हबजी आई हो, अरे आओ तो यार मुझे अंबिया का लफ्ज़ दिखाओ जरा यहाँ कि यहाँ कहाँ लिखा है कि अंबिया को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा? कहाँ लिखा है? अंबिया का नाम नहीं है। और ये लानतुल्लाह अलैल कादिरीन उर्दू में भी है, अरबी क्या अल्लाह ताला माज़अल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने नबियों को चुना क्यों? नबी ही क्यों बनाया अगर जहन्नम में डालता था माज़अल्लाह? अरे जो अल्लाह के वली है ना, वली, ये अल्फाज है, ये देवबंदी है, देवबंदी। बरेलवी आलिम ने किया है, अंबिया कराम और सालीहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है। ये तेरे आलिम कहाँ लिखा है? मुझे यहाँ अंबिया का लफ्ज़ दिखा। देखो मुसलमानों, ये बहस बढ़ रही है मगर ये सबूत नहीं दे रहा है। इतना बड़ा झूठा और मक्कार है ये शैतान। मैंने यहाँ खड़े हुए सारे लोगों को दिखा दिया कि यहाँ अंबिया का लफ्ज़ इसमें शामिल किया है। यहाँ अंबिया का लफ्ज़ कहाँ है? बहरहाल ये किताब तुम्हारी है, किसकी है, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई मुझे नहीं पता, ठीक है? मगर यहाँ तू अंबिया का लफ्ज़ नहीं दिखा सका। अब मैं फोन कट कर रहा हूँ, ठीक है मुसलमानों? जो हवाला मुझे देने के लिए इसने कसम खिलवाई थी, मैंने वो हवाला भेजा और काफी सारे हवाले भेजे, ठीक है? यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। मैं बात करने के मूड में नहीं था, मैंने पहले ही मना किया था, फिर भी मैंने बात की, ठीक है? फिर भी मैंने बात की। अब मेरी बात पूरी हो गई, अब लड़ाई झगड़े पे आ गया। कॉल कट करता हूँ इस हरामी को, ठीक है? इस हरामी से बात भी नहीं करनी, क्योंकि इसने खुदा के लिए कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है और खुदा वो सब काम कर सकता है जो बंदे नहीं कर सकते, जो बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा भी कर सकता है। तो मैं बहुत सारे ऐसे काम बता दूंगा कि जो बंदे करते हैं मगर खुदा नहीं करता। अच्छे काम बता दूँ। बंदे नमाज पढ़ते हैं, खुदा नमाज नहीं पढ़ता। बंदे रोजा रखते हैं, खुदा रोजा नहीं रखता। समझे मुसलमानों? बंदे ज़कात देते हैं, खुदा ज़कात नहीं देता। मैं अच्छे बहुत काम बता दूंगा। इसने कुफ्र का फतवा लगाया, मुर्तद होने का फतवा लगाया, तो ये बहुत सारे काम है जो खुदा नहीं करता है। हाँ, एक ऐसा काम है जो हम भी करते हैं, खुदा भी करता है, मगर हमें करने पर जो है ये हरामी कहते हैं, ये बिदती हैं, ये मुशरिक हैं, और वो है दरूद व सलाम। खुदा ने खुद कहा है। अभी वेद और इबारत नहीं पढ़ने देता अपने आला हज़रत की। आप ही कहिए जिनको मैंने ये हवाला पढ़वाया। हेलो हजरत, हजरत मेरी एक बात सुनिए। वो कौन सी ऐसी चीज जो कि खुदा नहीं देखता और बंदा देखता है? जवाब दो इस बात का। ये सब छोड़ो, ये सब ना सब छोड़ो। अरे बंदा देखता है, खुदा नहीं देखता। अब इधर देखो, पूरी जमात बैठी है बरेली की। साहब इस बात का जवाब सब इसका कुफर में साथ दे रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी को ये सब काफिर मुर्तिद आलम ये सब बताए हम लोग। और ये सारी जमात खुदा अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह है, कादिर है। मुझे बरेली की इबारत नहीं करने दे रहे। 2 मिनट की बात करो। अच्छा, ये साहब एक भाई हैं, सुनिए, एक भाई हैं, उन्होंने कहा तुमसे कि